आइए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत एक्साइटिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ आलोक कुमार सैनी जी हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। आलोक कुमार सैनी साहब कॉर्पोरेट में 18 साल काम करते रहे। एम आई राइट सर? जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट छोड़ा एंड नाउ ही इज़ अ फुल टाइम ट्रेनर। बाकी की बातचीत हम आलोक जी से करेंगे, आलोक जी अपने बारे में बताएँगे। तो बेहतर आपको लगेगा आप उन्हीं के मुँह से सुने, तो आप कनेक्ट कर पाएँगे, आलोक जी कौन है। आलोक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज़ थैंक यू सो मच। अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्या हिस्ट्री रही है आपकी? So first of all, thank you so much for this wonderful opportunity. I think this is one platform where you invite such insightful people with thoughts, ideas, and contributions to make. I am just one of them in this series, and my name is Alok Kumar Seni. I happen to be an old corporate veteran who's worked for around 17 and 18 years in corporate. But then there was this inner calling which forced me to do something more in life, and then I quit my corporate life, and now I am a full-time career coach and a life skills trainer expert, and also my USP lies in stress management coaching, which is the reason why corporates and institutes want me to run stress management sessions for the students and employees. Yes, I am based out of the Pink City, Jaipur, which is a very peaceful yet modern and happening city. And I love writing, and writing has always been my first love. So, the book which we are going to talk about today has been the biggest achievement of my life beyond any measure. And I am one of those people who consider pen as as something which is mightier than the sword. So thank you so much, Samirji, for this wonderful opportunity. And I just can't stop pinching myself as I'm so glad to meet all the viewers, all the listeners for this wonderful occasion. Thank you. Alok ji, pleasure is ours. Pleasure is mine that I'm Okay. actually I got an opportunity to talk to you. थैंक यू सो मच फॉर Thank गिविंग you. दिस Thank अपॉर्चुनिटी। you. सो जिस बुक के बारे में हम बात करने के लिए हैं, Ji. प्लीज लेट अस नो व्हाट्स द टाइटल ऑफ दैट बुक एंड इफ एट ऑल यू कैन शो दैट बुक टू अस, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर। Sure, and I must express my heartiest gratitude and excitement as the book which I've written is right behind me, which is How to Revive Your Work Life. And this is a non-fiction book which focuses on improving your professional life, your work life. So this book focuses on six major sections which are very inseparable part of our work life. So this book focuses on bosses, colleagues, subordinates, office politics, stress in office, and the kind of growth that all everyone is looking forward to. So these are the major topics which everyone is facing on a day-to-day basis, and then there are some challenges which we all face in our work life. So this book focuses on practical inputs and contribution in the form of real world techniques that you can adopt and follow in your day-to-day life for a happy and a stress-free work life which is full of growth and achievement. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस बुक ऑफ योर्स सो विविडली एंड सो कैंडिडली। शुरू करते हैं। जस्ट इन जी, केस जब आपने ये वाली बुक लिखी, जब आपने जी. ये वाली बुक लिखी, तो पूरी की पूरी कल्पना होती है या आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी के एक्सपीरियंसेस उसमें शामिल होते हैं? So, to be candid, I think this book is a non-fiction book, and writing this book was never very easy because this thought was popping in our mind for almost 10 years. 10 साल पहले ये शुरुआत हुई थी कि इस तरह का कुछ एक थॉट है जो सामने लाना चाहिए लोगों का। एंड एज आई सेड दिस बुक डील्स विद द प्रोफेशनल एंड द वर्क लाइफ। तो ये एक ऐसी दुनिया होती है where people feel a lot every day but they don't express it. Sometimes the boundaries, sometimes the hesitation, sometimes they are not vocal about their challenges. So this book is not a book which you write in a week on a weekend sipping a cup of coffee. This book is actually the outcome and the output of 10 years in the making where I have discussed and I have spoken to so many people around the globe virtually and offline. So I think this is the crux of
their experiences, their feelings, their emotions, what they feel. And जैसे कि आपने कहा कि मेरे भी थॉट्स हैं इसमें, yes, yes, this book has a lot of thoughts which I have witnessed firsthand since I've worked for almost 2 decades. So this book has a little part which is which is related to my professional life also. But trust me, this book is not person focused. This book is actually the ocean of experiences which so many people have shared over a number of years. And this is the reason this book took me almost 2 years to write and 10 years in my thought, in my mind. Because when you express the challenges, when you express the inner voice, when you express the emotions of so many people, you cannot have a biased approach. So, yes, it took time, but I'm happy the way it has turned out to be, because the kind of feedback that I've got from people, I think the best feedback is that this book hits on the spot without taking sides and gives a very thoughtful and meaningful solution to the most burning issues in corporate. Excellent, excellent, sir, excellent. I perfectly understand. जी, A number of time it happens. Uh, I had experienced it myself. जब एक ऑथर अपनी बुक को लिख रहा होता है या उसके लिए प्लानिंग कर रहा होता है या रिसर्च कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो लर्निंग उन्होंने उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से ली ऑथर ने, वो अपनी बुक में डालता है, सो दैट आगे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, उस कॉन्सेप्ट को आगे लोगों को बता सके। जाहिर सी जी। बात है, जब आपने ये बुक कंप्लीट की, लिखी, बहुत सारे लोगों से रिसर्च की, मतलब बातचीत करी, तो क्या इस बुक को लिखते-लिखते या बुक के पब्लिश होने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आया? यस, बहुत, बहुत, बहुत समय जी, आई थिंक एक इंसान के बिफोर और आफ्टर की जो कंपैरिज़न है, वो शायद एक ऑथर की नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ा होता है। बिकॉज़ जब आपके माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो मैं आई कैन सेफली से कि हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई किताब की कहानी ज़रूर चल रही है। चाहे वो फ़िक्शन हो, नॉन फ़िक्शन हो। आज सब अगर किताब लिखने लगे तो हमारे देश में 140 करोड़ किताबें होंगी, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। बट कहीं न कहीं वो थॉट्स, वो जो ख़्याल हैं, वो माइंड में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चले जाते हैं और वो अल्फ़ाज़ और शब्दों का रूप नहीं ले पाते। तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट, सबसे बड़ा जो डिफ़रेंस अगर मैं कहूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर में, वो ये है कि जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वो आप कागज़ पे लिख पाए, वो आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर पाए, प्रस्तुत कर पाए। आई थिंक ये खुशी जो होती है, इस खुशी को मापने के लिए आई डोंट थिंक कि कोई मेज़रमेंट या कोई बेंचमार्क बना है। तो एज़ अ पर्सन, येस, बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके साथ में जीता था, अंदर ही अंदर, और उनके साथ ही मैं लाइफ़ जिए जा रहा था। बट आई थिंक विद दिस बुक, that emotion, that, that ocean of feelings that I had, I think it is to up for everyone to see. और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो फ़ील करें वो लोगों के सामने खुल के कहें। एंड ये सिर्फ़ एक नॉन फ़िक्शनल बुक की बात नहीं है। अगर आपके माइंड में, आपके दिल में 1-2 लाइनें भी हैं, चाहे वो कविता की क्यों ना हो, चाहे वो किसी शायरी की क्यों ना हो, मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा, दिस इज़ माय हार्टफेल्ट urge and request to everyone, please don't keep it in your mind and heart. Write it down, because the kind of emotions that will vent out with your words, I think that will make you a much better person. इस किताब को लिखने के बाद मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो सुकून मिला है मुझे, जो एक फुलफिलमेंट मिला है मुझे, आई थिंक आई कैन नॉट पुट दैट इन वर्ड्स। उसके लिए मैं चाहे ऑथर क्यों ना हूँ, उन उस फीलिंग को मैं वर्ड्स में नहीं लिख सकता। बिकॉज़ जब आप ऑथर बनते हो, जब आपकी किताब छपती है, तो वो सिर्फ़ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ़ कागज़ों में पुलिंदा नहीं है। वो इट्स लाइक अ बेबी टू यू। इट्स लाइक दैट क्रिएशन, दैट स्वीटेस्ट क्रिएशन दैट यू हैव पेन्ड ऑन योरसेल्फ। और वो जो एक आपको एक अधूरेपन को जो पूरा करता है, दैट फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, आई थिंक दैट इज़ द स्वीटेस्ट फीलिंग। ये शायद हमारे श्रोताओं को मैं बोल के नहीं बता सकता, बट अगर आपने 4 लाइनें भी लिखी हैं और किसी को बताई हैं या कहीं वो छपी हैं या कहीं आपने सुनाई हैं, तो वो जो एक लम्हा होता है, उस लम्हे की खुशी वही महसूस कर सकता है जिसने वो चंद अल्फ़ाज़ लिखे हों। दैट्स ऑल। आलोक जी, आई मस्ट से, मैं
आपको देखने वाले, इस प्रोग्राम को देखने वाले, आपको सुनने वाले जितने भी रीडर्स हैं और अगर उनमें ऑथर्स भी हैं, तो आपके वो इस विचार से 100% रेज़ोनेट कर रहे हैं राइट नाउ कि अ, उस बुक को लिखने के बाद आपको जो फीलिंग हुई है उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड एंड आई एप्रिशिएट दिस। ये एक बहुत थैंक बड़ी फीलिंग होती है, आपने एक चीज़ क्रिएट की है। सच देखा जाए ना, यू। तो नेचर ने हमें बनाया ही क्रिएशन के लिए है। वेरी अ, हम पैदा हुए हैं तो हमें क्रिएट किया गया था, हमने आगे क्रिएट किया। वी आर सपोज्ड टू क्रिएट। आप पेड़-पौधों, किसी चीज़ को भी देख लिया, एवरीथिंग इज़ क्रिएटिंग। यस। जिस दिन हम क्रिएट करना बंद कर देते हैं, हमारा एक्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है। आई वेरी ट्रू। एप्रिशिएट दैट। बहुत, बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स जी। अगली एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है आलोक जी की, वो चीज़ तो वैसे हम आपकी जब बुक पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ही हमें बताइए आपका जो राइटिंग स्टाइल है, आपका राइटिंग सिग्नेचर है, वो कैसा है? हाउ डू यू राइट इट? मतलब नैरेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉशन है या काउंसलिंग है या इंस्ट्रक्टिव है? किस तरीके का सिग्नेचर है आपका? देखिए, सिंस दिस वाज माय फर्स्ट बुक, इट वाज इम्पोर्टेंट दैट आई नरेट एवरीथिंग एज इट इज, बिकॉज ये एक नॉन फिक्शन बुक है। पर नॉन फिक्शन बुक जब लिखने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, इफ यू आर highlighting some issues and challenges, then your writing style tends to incline towards criticizing those issues, and you are, you are bound to take sides कि अरे ये सब कुछ बुरा होता है, इतना लाइफ इतनी चैलेंजिंग है, सब कुछ नेगेटिव होता है। सो माय बिगेस्ट चैलेंज वाज that I have to share the actual situation without criticizing too much, without focusing on the negativity, and ultimately उसका एक solution आना चाहिए। So ultimately, जब बुक लिखनी शुरू की थी मैंने, then I first thought was that I should share the problems which people face in the day-to-day professional life, work life. ओके, And then the first thought was कि सिर्फ प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं खरीदने वाला, लोगों को सॉल्यूशंस भी चाहिए, which is why we buy non-fiction books so that they can help us in finding solutions to our already troubled life. करेक्ट, तो वहां से एक नई दिशा मिली कि मुझे इस बुक को इस तरह से दिखाना है कि जो भी बेटर और नेगेटिव चीजें हैं उनको मैं सटल वे में थोड़े ह्यूमर के साथ बताऊं, ताकि लगने वाले को ये ना लगे कि उस पर अत्याचारों या दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। इट शुड बी टेकन लाइटली, इन लाइट, ऑन अ लाइटर नोट। तो वहां पे मैंने थोड़ा ह्यूमर भी यूज किया है, सरकाज़म भी यूज किया है, और जहां पे मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं वहां पे आई हैव ट्राइड टू क्रिएट अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच दैट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए टू इम्प्रूव योर वर्क लाइफ, इम्प्रूव योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपको सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कंटिन्यू योर, यूजुअल लाइफ, योर नॉर्मल लाइफ, एंड उसी में ही कुछ चेंजेस करके यू कैन गेट द बेस्ट वर्क लाइफ व्हिच मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो वो एक अप्रोच जो है, आई थिंक आई विल लेट द रीडर्स देमसेल्व्स टू जज एंड डिसाइड कि क्या अप्रोच है, बट मैंने कोशिश यही की है कि पढ़ने वाले को मजा आए, और अगर आपने एक पेज पढ़ा है तो दूसरा पेज पढ़ने का अपने आप आपका मन करे। सो दैट वाज द आइडिया दैट आई वांटेड टू स्ट्राइक, बिकॉज़ व्हेन you are over criticizing too much, you tend to become negative in your approach, which I wanted to avoid. Because since this book is talking about the solutions, I want people to be very optimistic about this book. तो जहां पे भी मेरे को लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हो रही है, वहां पे मैंने सटल सरकाज़म और ह्यूमर यूज किया है, जिसमें पढ़ने पे लोगों के चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी। ओके, ओके। बिल्कुल ठीक है। ये सिग्नेचर जानने का जो मेरे मन में सवाल आया था आलोक जी, वो इस वजह से था। बहुत-बहुत समय पहले एक फ़िक्शन पढ़ा था मैंने। जी। मुझे बिल्कुल याद नहीं उसका टाइटल भी और राइटर का, लेकिन उस राइटर का लिखने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने क्या किया था कि जो प्रोटैगनिस्ट था, जो जी। कैरेक्टर उस पूरे के पूरे नॉवल का हीरो था, प्रोटैगनिस्ट था, उसने अपने आप को प्रोटैगनिस्ट बनाया था। सो हम्म। उसकी राइटिंग में हर जगह पर जैसे होता है ना कि ही वेंट आउट देयर एंड ही डिड दैट, ही परचेज्ड, ही परस्यूड, ही की जगह उसने आई यूज़ किया। सो हम्म। एवरीवेयर एन एंटायर बुक आई करके हुआ। तो आई हम्म। केप्ट ऑन थिंकिंग कि ये इसने ऐसा क्यों किया? मतलब इट सीम्स एज़ इफ ही इज़ ट्राइंग टू पेंट हिमसेल्फ, ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ बिग। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जिस वक़्त मैं बुक पढ़ रहा था, तो व्हेन आई वाज़ रीडिंग, आई वेंट आउट देयर टू द शॉप एंड परचेज्ड अ बैग ऑफ फ्लोर। सो क्या हुआ? आई।
मुझे लगा मैं कर रहा हूँ। हम्म। तब मुझे समझ में आया, अच्छा, अच्छा, उनका मतलब ये था कि जो भी उसे पढ़ रहा हूँ, वो खुद किताब में उतर जाए और आई, जी। आई करना शुरू करे। सो दैट वाज़ वन वन सिग्नेचर। उसी वजह से मैं आपसे सिग्नेचर पूछने की कोशिश कर रहा एग्जैक्टली, तो जो सिग्नेचर वाली जो आपने बात की है, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं कि मैंने अपनी बुक को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। उसके अंदर 33 चैप्टर्स हैं। सो जो 6 सेक्शंस हैं, दे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ। जैसे बॉसेस की मैं बात करूं, तो हर इन ऑल दीज 6 सेक्शंस मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर यूज किया है, हूँ। ओह! जिसका कुछ कुछ नाम है। और वो फिक्शनल कैरेक्टर एक्चुअली इसलिए यूज किया है बिकॉज आई वांट पीपल टू कोरिलेट विद दैट कैरेक्टर। ओके, So one of the best feedback, one of the best appreciation that I got was when people told me that ये character हमें लगा कि हम हैं। Obviously, I could not be saying, okay, it is Alok all the time facing this and that, because this is not my autobiography. This is actually the voice of so many people who are feeling and facing the same. So मैंने वो fictional character बनाया, उस fictional character को मैंने एक back story दी, and then I shared with the readers that this character is facing this problem. Aren't we also facing the same situation? And that is how I brought the readers into this perspective कि हम भी इस कैरेक्टर से बहुत जुदा नहीं हैं। वी आर मोर लेस लाइक दिस कैरेक्टर ओनली। तो वहां पे मैंने एक सिंक्रनी, एक हार्मनी बिठाई है, जहाँ पे पीपल कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद द बुक। तो मैंने ये बुक जो लिखी है, ये थर्ड पर्सन में या फर्स्ट पर्सन में ना लिखते हुए इस तरह से लिखी है दैट इफ यू रीड द बुक, यू विल फील एज इफ द बुक इज टॉकिंग टू यू। इट्स अ ओके, लिविंग इट्स अ लिविंग पर्सन। तो ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो है, इसमें मैंने बुक लिखी है, तो ये बुक पढ़ने वालों को ऐसा लगेगा कि यस दे आर टॉकिंग टू समवन जो सामने बैठा ऑलराइट, ऑलराइट, है। जी। ऑलराइट। Alok ji, I would just like to because I'm getting inquisitive about this. जो जी। 6 पार्ट्स की आपने बात करी और उसके अंदर there are a number हम्म। of chapters, 33 chapters you mentioned. जी। So, can you please just name those 6 parts जैसे आपने एक कहा बॉस वाला? So, uh, you know, just to uh, excite our inquisitiveness and excitement and कि हम जान और उसको कैसे पता चले, तो वो 6 चैप्टर्स क्या हैं? उनका नाम क्या है? जी। तो मेरे जो चैप्टर्स हैं, बेसिकली सॉरी, मतलब पार्ट्स हैं, चैप्टर्स तो पार्ट्स। उनके अंदर हैं। ओके, आई विल शेयर द बुक टू ऑडियंस आल्सो। प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी। प्लीज, प्लीज, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरी बुक है, व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस। This is the book, and this book is divided into 6 sections, and then there are small chapters also against the book. ओके, So, इस book का जो first section है, that is dealing with the creature called boss. That is the first section of the book. ओके, जी, मैं exactly I wanted to read verbatim, इसलिए मैंने book उठाई है। Second जो section है book का, वो है Welcome to the Circus of Subordinates। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने सबॉर्डिनेट्स के साथ काम करने के जो चैलेंजेस होते हैं, उन पे फोकस किया है। सेक्शन नंबर 3 इज सर्वाइविंग योर ऑफिस वेल विशर्स, आल्सो नोन एज कलीग्स। तो ओके, दैट इज अ सरकाज़म जो मैंने पुट किया है। नंबर 4 इज मैनेजिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स एट द वर्क प्लेस। काम ओके, करते हुए ऑफिस में हमारे इमोशंस और फीलिंग्स कैसे रहते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं उनमें, उस पर फोकस किया है। Number 5 and number 6 are the most important and the in trend topics, which are number 5 is combating job related stress। जो ओके, सबसे ज्यादा आजकल स्ट्रेस हो जाता है लोगों को जॉब में, तो fighting that job related stress is the number 5th section, and the last section is mastering office politics with a smile। तो ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके बहुत कुछ फील करते हैं लोग, बहुत कुछ कहा जाता है, पर मैंने आज तक ऐसी कोई बुक नहीं देखी है जिसमें ऑफिस पॉलिटिक्स को इतना ओपनली बताया गया है, जहाँ पे विदाउट बीइंग वेरी रोजी एंड पिक्चर। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी ऑफिस को लेके, पर ज्यादातर बुक्स में जनरली पीपल ट्राई टू पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर कि सब कुछ गुडी गुडी है, सब कुछ इट्स एवरीथिंग इज रोजी एंड पेंटेड इन ऑरेंज एंड पिंक। बट रियल लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं बुक्स तक आते आते बहुत मेलो डाउन हो जाते हैं। इस बुक में मैंने बहुत कुछ, इनफैक्ट एवरीथिंग इज सो ओपनली डिस्कस्ड दैट लोगों को लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ कल ही हुआ है। जी, सो दीज 6
topics, these 6 sections are further, detailed in 33 chapters. And I think ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जिससे शायद ही कोई ऐसा एम्प्लॉय हो, कोई ऐसा हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल हो जो बचा हो. These are the topics which we face, which we deal in day to day life. And I think मेजरली मैंने जितने भी बाकी टॉपिक्स थे वो इन्हीं में कवर किए हैं, so that I don't lose out or I don't miss on anything which people find relevant. आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। दोस्तों देखिए, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में जी, काम कर रहे हैं, तो ये जो 6 चीज़ें हैं जो आलोक जी ने अपनी बुक में भी मेंशन करी और अभी बता दी, वो होंगी ही होंगी। आप उनसे जुदा हो ही नहीं सकते। क्योंकि डिफरेंट. कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कंपनी में ये कल्चर ही है, मतलब इसी तरीके से कंपनी एक जी. फॉर्म होती है। जितने भी लोग उसके अंदर काम इनफैक्ट एक करते एक टाइम था, समीर जी, जब एक टाइम था कि कॉर्पोरेट कल्चर को अलग से सेग्रीगेट करते थे, बट अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल इवन इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इवन इन द गवर्नमेंट कंपनीज, द कल्चरल डिफरेंस इज डिमिनिशिंग. हुँ, जो पहले एक होता था कि गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप कभी भी चले जाओ, कभी भी आ जाओ, कैसे भी बिहेव कर लो. आई थिंक इवन इन गवर्नमेंट कंपनीज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एक्चुअली टेकिंग अ बिग बिग लीप. तो ये बुक सबके लिए रेलेवेंट है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट या सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं. हुँ, मैं हुँ। तो कहूंगा सबको इस बुक को पढ़ना चाहिए. एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट चीज़ जी, ये भी है आलोक जी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और ह्यूमन मेंटालिटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलवेज़ प्लेज़ अ ग्रेट ग्रेट रोल। एंड जी, दैट इज़ द ओनली रीज़न हर कंपनी में, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन हो या प्राइवेट, एचआर डिपार्टमेंट डेफिनेटली. एक्सिस्ट करता है। एचआर को अ, काफ़ी अ, गलत तरीके से, मतलब आई मीन टू से उसका मीनिंग हम गलत आई समझते हैं। अंडरस्टैंड. मीनिंग हम लोग उसको समझते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि बस वो लोग लेकर आएँगे, रिक्रूट करेंगे, सैलरी डिस्कस कर देंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन बता देंगे और बैठा देंगे, काम खत्म। ज़रूरत है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की तो हाँ भाई चलिए इंडक्शन करा देंगे। ये आपके बॉस हैं, जी. ये आपके सबॉर्डिनेट हैं, ये आपके कलीग हैं, काम खत्म। बट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्चुअली शुड बी ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उन लोगों का वेरी ट्रू. काम ही यही होना चाहिए कि उनको जो भी रिसोर्स आप लाए हैं उसको डेवलप करें। खैर एनीवेज़, क्योंकि हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो खट्टा-मीठा, जलन, अ, जेलसी और ब्लैक पुलिंग ये सब होगा ही होगा। ऐसी कोई जगह नहीं पाएँगे हम, जहाँ पर इन सब चीज़ों से दूर हम बड़े आराम से काम करें। सो वेरी ट्रू. आलोक जी की ये बुक हमें सिखाएगी कि जो भी प्रेज़ेंट सिनेरियो है, जिनमें ये चीज़ें एक्सिस्ट करती हैं, हमें उन्हें डील कैसे करना है। बहुत बढ़िया आलोक जी। आलोक जी, थोड़ा-सा डिफरेंट जाएँगे, जस्ट इन केस ये बुक आपने लिखी, अ, आपने कोई और टॉपिक पे भी सोचा क्या कि अगर हम कॉर्पोरेट से ही रिलेटेड है या समाज से रिलेटेड, किसी और टॉपिक के बारे में भी सोचा आपने कि चलिए लेट मी जस्ट ट्राई माय हैंड्स ऑन सम अदर टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, मैं इनफैक्ट there is one topic which I have wanted to write for a very long time, but somewhere, I think I am not getting the courage, I'm not getting the right way to present it, because the topic is very sensitive. And when I'm saying this, I'm talking about the condition and the situation of women in India. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. And even today, one piece of news which disturbs me the most in the newspaper is not murder, is not war, and neither any other theft. It is the atrocities on women. So आज भी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और वहाँ पे मुझे कोई रेप न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हिच डिस्टर्ब्स मी फ्रॉम इनसाइड. और मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मैं टू give a very clear picture, to actually paint the reality in the form of a book about the condition of women in India. And I know we have developed, we have grown as a nation, but to become the ideal state where women can move out freely, happily, and grow in life without any challenge and gender bias, I think that is one topic which I want to write. But maybe that is a long shot. सो वो एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे लिए क्लोज है, लेकिन वो मैं हाफ हार्टेड नहीं लिख सकता.
It जी, is not right. It's not like I write my opinion of how the topic is. I have to be very, very exhaustive in my approach. And but one thing is for sure, इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो शायद मैंने कई फोरम्स पे मैंने सुनाई भी हैं. I have written articles also, but my ultimate dream would be to write something which focuses on the situation and what kind of world and country we are heading towards. So I don't want to focus just one side of it. Yes, there have been changes, there have been improvements, but I think वो कहीं न कहीं ये जब न्यूज़ पढ़ता हूँ मैं आज भी न्यूज़पेपर में, that really breaks me from inside. So अगर हम एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा कंट्री बना पाए where things uh, reach up to a stage where we stop reading such news, I think that would be the purpose of my book if written so. अ, आलोक जी आलोक जी, वैसे तो ये प्रोग्राम आपका है, हम आपकी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा, आपने एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही कि क्या कुछ आपने कहा कि आपने अपनी बुक में बिल्कुल ब्लंटली बिल्कुल सच्चाइयाँ पेश की जिससे लोगों को रोज़ी पिक्चर के अलावा भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलें। Right. अ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आलोक जी कि समाज के प्रेशर में, सिस्टम के प्रेशर Mhm. में अ, आपके ऑथर पर प्रेशर आ रहा हो जो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में लिखने ना दे रहा हो? कहीं भई जस्ट इन केस आप बुरा ना मानिएगा, इफ Mhm. एट ऑल आई ट्राई जी, टू जी. पुट माय सेल्फ इन योर शूज़ एंड थिंक तो मुझे कभी एक एक झटके से ये विचार आता है कि अगर मैंने इस बारे में लिखा, तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ पीपल हू वुड एक्चुअली बी एंटागनाइज्ड शायद सिस्टम गुस्सा हो जाए, शायद बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएँ और आई डोंट नो आई मीन आई एम जस्ट गेटिंग स्केयर्ड सीधी-सी बात ये है। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो समीर जी, मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दूँगा दैट व्हेन आई वाज़ राइटिंग माय फर्स्ट बुक, हाउ टू रिवाइव योर वर्क लाइफ, वो बुक लिखने से पहले मुझे कई लोगों ने बोला कि भई ये तुम व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू सिट ऑन अ बॉम्ब एंड देन एक्सप्लोड इट बिकॉज़ इस बुक को लिखने के बाद द कॉर्पोरेट डोर्स विल बी क्लोज्ड फॉर यू फॉरएवर एंड हार्डली anyone will come in support of this book while working in a particular company. तो ये मेरे को these were the concerns, these were the these were the reminders to me. तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि अगर मैं जॉब छोड़ के अपनी बुक को अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के उस पे अपना लाइफ आई एम डेडिकेटिंग, अब मैं इस डर से ये सच ना लिखूं कि क्या है क्या नहीं है वास्तविकता में, तो आई एम नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू माई सेल्फ, नीदर माई सब्जेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द रीडर्स. तो जैसे कि मैं बताया आपको कि ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें मैंने बुराई किसी की नहीं की. सो आई एम गिविंग अ वेरी बिग डिस्क्लेमर टू एवरीवन. I have not criticized a single person in the book. I have not written anything which is not true. अब सच ही ऐसा है तो मेरी गलती नहीं है. जैसे कि मैंने बताया आपको कि लोग लिखते हैं अगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटीज एंड दीज इश्यूज, तो वो तो सच है ना दुनिया का. अगर उस पे कोई लिखता है तो कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है, वो सच का आईना दिखा रहा है. तो मैंने इस बुक के ज़रिए किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। इस बुक को पढ़ने के बाद कोई भी ऑफेंडेड फील नहीं होगा, दैट इज़ माय एश्योरेंस। लेकिन सच्चाई बतानी ज़रूरी है बिकॉज़ आप कहीं न कहीं अ, एक अच्छा ऑथर, एक फेमस ऑथर, एक पॉपुलर ऑथर बनने के चक्कर में सबको प्लीज़ कर रहे हैं, देन आई थिंक यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद द टॉपिक. फिर तो आप यू पिक अप एनी टॉपिक एंड फाइंड आउट व्हाट आर द ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो लोगों को अच्छे लगेंगे. राइट अ रोज़ी बुक व्हिच विल मेक एवरीवन हैप्पy. And be happy if that makes you happy. But I think राइटर्स और ऑथर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, राइटर चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें और ऑथर चाहता है ये बताना कि ये टॉपिक है, इसके बारे में मैंने ये सब पढ़ा है, लिखा है, सुना है, लोगों से पूछा है और ये सच है. सो आई थिंक ऑथर्स कहीं ना कहीं दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम. राइटर मे बी वो अपने बारे में सोचते हैं एंड दिस इज माय ओन पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू और नॉट, बट ऑथर कहीं ना कहीं अपने रीडर्स के बारे में सोचता है, वो अपने ऑडियंस के बारे में सोचता है कि लोगों को
जब पढ़ेंगे ये किताब तो उनको कैसा फ़ील होगा? क्या उनको सच पता चलेगा? अगर नहीं, तो क्या मैं उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के साथ एक जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ? क्या मैं उसके साथ ईमानदार हूँ? तो ये बुक लिखने के बाद ये कंसर्न थे ऑब्वियसली, लेकिन मैं आई विल बी वेरी ओपन एंड वेरी हैप्पी टू से whenever I have shared this book with anyone who's working in corporate or public sector or government organization, I think everyone has appreciated this book left, right, and center. And I have been invited to a lot of corporates for my sessions on stress management, on employee wellness, and which shows, which is a testament, which is actually a validation that this book is not creating a negative mindset or a negative message for the audience. This book came up with a promise that, hey, this is the picture, these are the solutions. Read the book and make your life better. That's it. We are not here to, we don't have a propaganda. We are neither here to promote anything controversial just for the sake of making it a big success. See, that is the truth. The idea is to bring the truth to this, to this reality. मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी थी ऑफिस सब्जेक्ट्स पे, विदाउट नेमिंग आई वुड से दैट दीज बुक्स वर वेरी गुड, लेकिन कुछ बुक्स में बड़ा अनरियलिस्टिक सा दिखाया जाता है कि आप बॉस के साथ बैठे हो, यू हैव वेरी क्लोज रिलेशन, यू आर हगिंग योर बॉस एंड यू हैव वेरी फिल्मी रिलेशन। आई थिंक रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैंने ये क्रिटिसाइज नहीं किया दैट यू हेट योर बॉस, बट आई हैव श्योर दैट whatever is depicted in fancy books is not reality, at least not in India for that matter. तो हम हमारे बॉसेस की इज्जत करते हैं, बट इतना फिल्मी नहीं होता रियल लाइफ में कि आप बॉस को हक कर रहे हो, उनके साथ गेम्स खेल रहे हो। आई हैव नॉट कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वुड से टू दिस। सो द आइडिया इज, अगर आप सच लिख रहे हो तो नॉन फिक्शन पकड़ो, अच्छी बात है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट पीपल शुड राइट फिक्शन, बिकॉज दैट्स फिक्शन एंड दैट इज given the liberty to think anything that you feel like. ओके। अ, इस बात से आलोक जी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। आपने बहुत-बहुत सारी ज़ाहिर-सी बात है, एक ऑथर होता है तो वो रीडर भी होता है, बहुत किताबें पढ़ता है, तो बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारी बुक्स उससे रेज़ोनेट करती हैं, कई सारी बातें उसको पता चलती हैं। वो वहाँ से भी कुछ सीखता है, अपने तरीके से समझता है और लिखता है। तो आपने पुराने Yeah. ज़माने की भी बहुत-बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। Mhm. अ, स्टीवन कोवे, सेवन हैबिट्स एंड रॉबिन शर्मा साहब की द मॉन्क हू सोल्ड Yeah. हिज फरारी, बहुत सारी। उस ज़माने की जो राइटिंग स्टाइल थी, कंटेंट डिलीवरी का स्टाइल था, और आज जब आपने बुक लिखी है और आज की राइटर्स की भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, उन दोनों की स्टाइल में कुछ फ़र्क नज़र आता है क्या आपको? ऑलराइट, आई विल रिफ्रेज़ दिस क्वेश्चन। जो पुराने राइटर्स हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, जी। उनके हुँ। मैसेज डिलिवरेंस स्टाइल और आपका मैसेज डिलिवरेंस स्टाइल में कुछ फ़र्क महसूस करते हो आप? देखिए समीर जी, ऐसा है, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर का बहुत बड़ा एक स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ। मुझे आज भी याद है 25 साल पहले मैंने पहली बुक उठाई थी, अ, फाउंटेन हेड बाय आयन रैंड। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी ऑथर हैं, ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड, ही इज़ क्लोज़ टू गॉड, बिकॉज़ 25 साल पहले आप मैं अपनी मनोदशा बता रहा हूँ, माय माइंडसेट वाज़ दैट जो ऑथर्स जो होते हैं, दे आर वेरी जीनियस पीपल, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। किताब लिखना आम आदमी की बस की बात नहीं है। दिस वाज़ माय थॉट 25 इयर्स अर्लियर। अब मैं आजकल देखता हूँ लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग बुक्स एंड आई एम नॉट सेइंग दैट बुक राइटिंग इज़ वेरी ईज़ी। आज भी बुक राइटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स राइटिंग। But somewhere I feel that earlier the authors had a very distinctive way of living their life, of presenting their ideas. वो ऐसे लोग थे जो अपना सब कुछ छोड़ के एक किताब पे ही अपना पूरा जीवन केंद्रित कर देते थे। They used to focus everything on their book, and which is why you see the classics of every category, of every genre. You name it, fiction, non-fiction. फिक्शन में आए एटलस श्रग्ड, फाउंटेनहेड। मैं बात करूँ अगर नॉन फिक्शन की, आई वुड टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट बुक्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आई थिंक ये ऐसी बुक है जो आज भी दे आर, दे आर एपिक्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेंचमार्क्स
तो हम लोग भी आज जो न्यू एज ऑथर्स हैं, हमारे लिए ये बुक आर रिटन बाय लीजेंड्स, एंड आई डोंट थिंक दैट द न्यू एज ऑथर्स कैन टच इवन एन आयोटा ऑफ व्हाट दीस पीपल हैव अचीव्ड। आजकल की जो राइटिंग है वो थोड़ी कन्वर्सेशनल हो गई है, हुँ, क्योंकि वहाँ पे अनुभव शायद इतना नहीं है आजकल के ऑथर्स के पास, जितना इमोशन है। पहले अनुभव ज़्यादा होता था, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था, इमोशन अलग-अलग स्टाइल में बयाँ करते थे वो। नाउअडेज़ ऑथर्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस एंड लेस बाय एक्सपीरियंस। आप देखिए पहले के ऑथर्स एक एक उम्र गुज़ारने के बाद किताब लिखना शुरू करते थे। Once they become 40s and 50s and maybe in their late 60s, they used to write a book which was actually a compilation of their experience all their life. करेक्ट, आज की जो न्यू आज के जो न्यू एज ऑथर्स हैं, आज 20 साल के लोग भी बुक लिख रहे हैं, 30 साल के भी लिख रहे हैं, एंड आई रोट माय बुक व्हेन आई वाज 38, सो इवन आई वुड कंसीडर माय सेल्फ अ पार्ट ऑफ द न्यू एज ऑथर्स। तो फ़र्क आया है, बहुत आया है। हमारे लिए वो जो पुराने ऑथर्स की किताबें हैं, चाहे आपने सेवन हैबिट्स ऑफ हाइली सक्सेसफुल पीपल कहा या फिर मैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कहूँ, ये हमारे लिए ग्रंथ है। और मैं मानता हूँ कि हम जो नए एज ऑथर्स हैं, उनकी अ, सोच में, उनकी लर्निंग में, उनके एक्सपीरियंस में, उनके आइडियाज़ में कोई कमी नहीं है। बट आई थिंक वन्स अ गोल्ड विल ऑलवेज़ रिमेन अ गोल्ड, वो चीज़ अलग थी, वो बात अलग है। मैं एक सटल जो कंपैरिज़न करूँ, तो इस तरह से है कि आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गाया हुआ गाना है, उसकी मिठास की कोशिश की जा सकती है, बट शायद अरिजीत सिंह जी बहुत ही माने जाने-माने एक गायक हैं, सिंगर हैं, बट वो खुद एडमिट करेंगे इस बात को कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ है, उसमें जो जादू है, उसको पाने की कोशिश की आप कर सकते हैं, बट उसको उसको पाना और उससे आगे बढ़ना, आई थिंक दैट इज़ अ विशफुल थिंकिंग एट बेस्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने साहब। बिल्कुल एप्रोप्रिएट एग्ज़ाम्पल आपने दिया है कि ठीक है, माना कि अरिजीत सिंह इज़ अ वेरी, वेरी नाइस सिंगर आज की जी। डेट के, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का हाथ नहीं पकड़ पाएँगे। वो लेजेंड हैं और वी शुड रिस्पेक्ट हिज़ टैलेंट, हि उनकी जो प्रतिभा थी, वो अनमैचेबल है। दिस इज़ एन अनडिनायबल फैक्ट। तो आलोक जी, बस एक छोटा-सा और सवाल। आजकल हम लोग मैं अपनी ही बात करूँ, हम लोग क्या बात करें? ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं राइट। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं। 90% लोग अपने मोबाइल में होते हैं और मैंने कोशिश की है आउट ऑफ माय शियर क्रेज़ीनेस कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ डब्बे में, तो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली होल्डिंग अ बुक। सो मेनी मेनी टाइम्स इट्स रियली रियली पेनफुल फॉर मी टू ऑब्जर्व दैट शताब्दी का पूरा डब्बा भरा हुआ है और एक बंदे के हाथ में किताब है। मेरा मन करता है जाके उस बंदे को गले लगा लूँ कि भाई तू ही है ऐसे बस। ऐसी ही भीड़ में वो एक बंदा जनरली मैं ही होता हूँ। सो बस पूछना ये चाह रहा था कि किताबों का भविष्य है क्या यार? डर लग रहा है कि ये किताबें कहीं खो ना जाएँ। देखिए, भविष्य का तो ऐसा है, समीर जी मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। ऐसे ही एक ट्रेन जर्नी में मैं जा रहा था विद फैमिली, और हमारे सामने एक और फैमिली बैठी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जनरली ट्रेन जर्नी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग फॉर मी, बिकॉज़ वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप किताब पढ़ सकते हो, बिना किसी रोक-टोक के और बिना किसी झटकों के, क्योंकि रोड जर्नी में जनरली देयर आर लॉट ऑफ यू नो इश्यूज़, पॉटहोल्स में, खड्डे-वड्डे में, सब कुछ हाँ, में। जर्क्स बहुत लेकिन रहते ट्रेन हैं। जर्नी, हाँ, ट्रेन जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे जनरली मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग जर्नी होता है, तो एक पूरी जर्नी में आई कैन रीड अ बुक। तो एक ऐसी जर्नी में मैं विद फैमिली जा रहा था, सामने एक और फैमिली थी, और जैसे मेरी आदत है, आई ओपन्ड अ बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग। अब हमारे साहबज़ादे जो हैं 7 साल के, उन्होंने भी अपनी स्टोरी बुक निकाल के पढ़ने लग गए, बिकॉज़ हिज़ फादर वाज़ रीडिंग। सामने जो फैमिली बैठी थी, उसमें द फादर वाज़ स्क्रॉलिंग समथिंग ऑन द मोबाइल, और उनके जो साहबज़ादे थे, ऑलमोस्ट द एज ऑफ माय सन, ही वाज़ प्लेइंग गेम्स इन द फ़ोन, इन हिज़ मम्मीज़ फ़ोन, मदर्स फ़ोन। तो ये
आई थिंक अनस्पोकन जो मैसेज है, वो यही है, व्हाट द लीडर्स आर डूइंग, द पीपल विल फॉलो। तो आज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू क्रिटिसाइज मोबाइल फोन्स, हू क्रिटिसाइज सोशल मीडिया। ऐसे दिस इज एक्चुअली अ वे टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट। आज हम वही करते हैं जो हम देखते हैं। तो मैं न्यू जनरेशन को यही कहूँगा कि आप ऐसी हैबिट्स डालिए, जो आने वाले जनरेशन को रीडिंग की तरफ ले जाए, राइटिंग की तरफ ले जाए, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स और वॉचिंग स्टूपिड रील्स और वीडियोज़। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एज़ अ पॉपुलेशन in India and abroad, I think people have tried to catch up with technology with the introduction of e-books and Kindle readers, book readers. But I think most of the people would agree with me कि जो मजा एक फिजिकल बुक को हाथ में पकड़ के पढ़ने का है, आई थिंक वो मजा कभी भी एक ऑडियो बुक या एक ई बुक को पढ़ने में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि किताब एक किताब नहीं होती। ये एक दोस्त है, एक हमसफर है, ये एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड भी है, और ये आपके हर इमोशन का एक सहारा भी है। So I think, and I'm really optimistic about it, that okay, maybe the current phase is getting a mix of the offline and the online reading habits, but in the longer run, books will never die. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी भी संप्रदाय के हों, ये हज़ारों साल पहले लिखे गए थे, लेकिन ये आज भी जीवित हैं। इनफैक्ट आज लोगों का झुकाव बढ़ रहा है इनकी तरफ। इसलिए जो भी किताबें हैं, जो भी स सोसाइटी है, समाज है, आज कहूँ या 100 साल बाद कहूँ या 500 साल बाद कहूँ, books will definitely be an inseparable part of every society, every phase, every era, because to sum up my entire message in one line, I would say that लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इंसान जन्म लेता है, इंसान मरता है, लेकिन एक किताब एक ऐसा दोस्त है, ये किताब एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी प्रेरणा है, जो एक बार छप गई, तो फिर वो अमर हो गई, और आप उसपे लिखा हुआ आपका नाम भी अमर हो गया। वो जो नाम है, वो जब तक मानवता रहेगी, ह्यूमैनिटी एग्ज़िस्ट करेगी, तब तक वो चलेगा, और लोग भले ही आपको पर्सनली ना मिल पाएँ आज से 500 साल बाद, पर जब भी आपकी किताब पढ़ेंगे, तो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये मेरा विश्वास है। दैट्स एन अमेजिंग थॉट। दैट्स एन अमेजिंग थॉट। बहुत बहुत समय पहले मेरे एक मित्र ने कहा था, इसका मतलब ये हुआ साहब कि ये इमॉर्टल होने का एक तरीका है। तो ठीक है, ही माइट हैव मेंशन्ड दिस मे बी इन अ फनी वे और जो भी है, लेकिन आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप जी, इमॉर्टल होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, तो एक किताब लिखिए। डेफ़िनेटली। दोस्तों, तो ये हैं आलोक कुमार सैनी साहब, जिन्होंने अपनी ये बुक के बारे में आज हमको हमारे इस प्रोग्राम में बताया, इनर डिटेल्स भी बताई। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपको अब उतनी तो क्यूरियोसिटी पैदा हो ही रही होगी कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आपको जान लेना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें शायद आपको बॉदर करेंगी, एंड यू शुड बी प्री रेडी। जैसे प्री फिल्ड सिरिंजेस आती हैं आजकल, और you will be pre-ready to tackle all those situations which are actually going to come in your career, in your corporate life, क्योंकि corporate life का मतलब सबसे प्राइवेट नहीं रह गया। Now it is in government हुँ, organizations जी, as well. आलोक जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, लोगों को अपने बुक के बारे में बताया। लोग सर्टेनली सर्टेनली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बुक, और मे बी some training, तो it could happen. जी। थैंक यू सो मच आलोक जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत-बहुत थैंक यू सो आभार। मच समीर जी, थैंक यू सो मच। मैं बस यही कहूँगा हमारे ऑडियंस को कि अगर आपके दिल में, दिमाग में अगर 2 लाइनें भी हैं, तो उसको दिमाग में मत रखिए, दिल में मत रखिए। अल्फ़ाज़ बन के उसको कागज़ पे उतार दीजिए, और फिर देखिए, दुनिया में कितने कितने दोस्त आपको मिलेंगे, जो या कहेंगे कि वाह! क्या खूब लिखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच।